Good morning, everyone. Till now, we have completed exercise 8.1, and today we are going to start with the exercise 8.2. Actually, today we are not going to start 8.2, but we are going to do the theorem, midpoint theorem, which is the base for this exercise, right? So first of all, we have to do midpoint theorem, and because your 8.2 is application of midpoint theorem, so first of all, we have to learn what is it, and we are going to do its proof, right? So what is midpoint theorem? Your midpoint theorem is the line joining any two sides, the midpoints of any two sides of a triangle, line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of the third side. If we're taking a triangle ABC and you have taken the midpoints of any two sides, you have taken P, the midpoint of AB, and Q as the midpoint of AC. And if you are joining these two midpoints, then we are saying the line which is coming, it will be parallel to the third side because two sides we have already taken जिनके हमने midpoints लिए हैं, अब रह गई हमारी third side. So we are saying कि ये जो side आएगी ये third side के parallel आएगी and it will be half of the third side. अगर आप इसकी length measure करें तो ये बिल्कुल इसके half मिलेगी, right? This is your midpoint theorem. जिसका हमें करना है आज proof, right? Okay, so now you have to tell what do I have to write in given. आपके पास ये जो क्वेश्चन है आपकी सिर्फ स्टेटमेंट सिर्फ ये लिखा हुआ आ सकता है स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम. सो इन दैट केस यू विल हैव टू राइट द स्टेटमेंट आल्सो, राइट? सो 4 मार्क्स में अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें से हाफ या 1 मार्क की आपकी स्टेटमेंट. देखो किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है वेल एंड गुड, अदरवाइज यू विल हैव टू राइट द स्टेटमेंट योरसेल्फ. इसमें आप गिवन, टू प्रूव, construction, figure and proof, इन सब के आपके हाफ हाफ मार्क होते जाते हैं. हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क एंड जो रिमेनिंग रह जाएंगे आपका 4 मार्क. अगर क्वेश्चन है स्टेटमेंट आपको गिवन है तो उसमें से आपके ये 2 मार्क्स तो इधर हो गए, बाकी 2 मार्क्स का आपका प्रूफ हो जाएगा, राइट? कंस्ट्रक्शन ऑल्सो हाफ मार्क. अगर प्रूफ नहीं भी लिखते हैं then also you are going to get 2 marks if you have drawn the figure, if you have right given, to prove and construction, right? So all these include 2 marks. और अगर स्टेटमेंट नहीं आती है तो आपको स्टेटमेंट के हाफ या 1 मार्क वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, right? So we are going to start with the given. चलिए जल्दी से बता दीजिए what you will write in the given. क्या लिखूं? Midpoint of P AB and C respectively. and Q are midpoints of AB and AC of triangle ABC. ठीक है? What is to prove? What is to prove? आपको क्या समझ में आ रहा है इधर से? क्या प्रूव करना होगा? Line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of third side. So these two things are to be proved. इनको लिखूं कैसे? Third side is parallel. PQ parallel to BC. First part is PQ PQ parallel. parallel to half of BC. No, parallel to PQ is equal to half of BC. yes. देखो पैरेलल तो पूरी के पैरेलल है, आप उसके हाफ के पैरेलल बोलो या उसके पैरेलल बोलो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो PQ is parallel to BC and we have to show that PQ is half of the third side, means we are going to prove that PQ is equal to 1/2 BC, right? Okay, अब करनी है, हम इसको डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते, we will have to do its construction. ठीक है, मैं इसका ये इरेज कर रही हूँ ऊपर से थ्योरम क्योंकि अब इसके नीचे तो आपको क्लियर नहीं होगा, वहां से कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द कंस्ट्रक्शन इज, आपने इस लाइन के पैरेलल सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है. यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू बी. पी बोलो या बी ए बोलो, आपकी मर्जी है, एक ही बात है. पैरेलल लाइन आपकी एक लाइन के पैरेलल हो या उसके पार्ट के पैरेलल हो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस.
वी आर सेइंग इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड मतलब ये जो लाइन थी मैंने इसको स्केल रख के आगे तक बढ़ा दिया, जहां तक जा रही थी, जैसे इस लाइन ने इस पैरेलल लाइन को कट किया मैंने उसको छोड़ दिया, राइट। तो ये है मेरी कंस्ट्रक्शन जो आपने अपने माइंड में रखनी है। लेट दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स प्रूफ। प्रूफ में आपने कुछ स्टेप्स ध्यान रखने हैं कि आपने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहला स्टेप, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। सेकंड स्टेप, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। और थर्ड स्टेप में हमारे ये जो प्रूव करना है ये आ जाएगा, राइट। तो ये 3 स्टेप्स आपने ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी राइट द कंस्ट्रक्शन। अब मैं इरेज कर रही हूँ। मुझे जो प्रूव करना है वो मैं साइड पे लिख के रख लेते हैं। लेट मी राइट इट है। PQ is parallel to BC and PQ is equal to 1/2 BC. This is what we have to prove. And now we are going to write the construction. क्या की है कंस्ट्रक्शन में, जल्दी से बता दो। क्या लिखूं, जल्दी बताओ। AD parallel Line A. parallel to to BA. AB. Draw CD parallel BA. और क्या किया, एंड और क्या किया, Extend PQ to point D. यस, एक्सटेंड PQ अप टू D। देखो वैसे हम यहाँ लिख तो रहे हैं बट यहाँ पे लिखने में एक कह रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये D है। वैसे तो जो होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए, हमने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये नाम दे दिया CX। हमने CX इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, हमने इसको एक्सटेंड किया जिसकी वजह से इसने क्या किया, CX को D पॉइंट पर कट किया, ठीक है। और बस आपने इतना लिखना है, ठीक है। या तो आप इसको इस फॉर्म में लिखो, अदरवाइज इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस देन आल्सो यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, राइट। ओके, नाउ द प्रूफ। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, व्हाट डू वी हैव टू डू। APQ ट्रायंगल और QDC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। Yes, very good. In triangle APQ and triangle CDQ. चलो बताओ फिर क्या क्या लिखूं, कैसे कॉन्ग्रुएंट करें। One is equals to angle Comment हो जाए. Where do I have to, rectangle. where do I Angle A equals to angle C. angle Q A equals to angle C. alternative interior angle. angle P is equal to angle Sorry, ma'am. Angle A equals to angle C. angle A is equal to angle C होगा, because these two lines एंगल क्यू दोनों में को बने, और हम एंगल AQP एंगल क्यू मैम दोनों में को बने. yes, this angle is equal to this angle because they are vertically opposite angles. Let this is 1 and this one is 2. 1 and 2 are vertically opposite. This A is equal to angle C. Q is the midpoint. Q Yes. midpoint है. Q is the midpoint, so we can say what? AQ equals to What can QC. we say? AQ is equal to AQ is equal to QC. CQ. So the two triangles will be congruent by ASA. AS, angle, side, angle से आपके congruent हो जाएंगे. So let me write angle 1 is equal to angle 2. These are vertically opposite angles, and AQ is equal to CQ because Q is midpoint of AC, and the third we are saying 3 is equal to 4 because they are alternate interior angles. That implies triangle APQ congruent triangle APQ CDQ by ASA congruency, ठीक है। congruent हो गए। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना था, Prove BPDC is a parallelogram. yes, we have to show that BPDC it's a parallelogram. parallelogram prove करने के लिए मेरे पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं,
if I show that these are equal also, then if we have one pair of opposite sides of a quadrilateral to be equal and parallel, then we can say that it will be a parallelogram. So now our task is to prove that this is equal to this. कैसे? मैम जो ये And we दो will say कॉन्ग्रेट AP करे is थे equal to CD. मैम जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेट करे थे मैम इनमें मैम DC इज इक्वल टू AB और मैम P मिड पॉइंट है मैम AP इज इक्वल टू PB है मैम फिर DC इज इक्वल टू PB हो जाएगा। बेटा AC is equal to AB कैसे कह सकते हैं? AC is equal to AB तो नहीं, it is not an isosceles. मैम AP इज इक्वल टू DC AP is AP इज equal इक्वल to, टू हाँ जी, आपने CP/CT से बोला कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं अगर AP CD के इक्वल है, बट AP तो PB के इक्वल है। मैम फिर AP मैम PB के इक्वल है तो मैम फिर मैम PB इज इक्वल टू DC। ओके ओके ओके, आप जस्ट वेट। यस, वी आर सेइंग कि ये इसके इक्वल है बाय CP/CT। AP इज इक्वल टू CD बाय CP/CT, ठीक है। बट AP is equal to PB. It is given to us because P is the midpoint. ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये हमें midpoint given था, राइट? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये इसके इक्वल बट ये इसके इक्वल, that means the two sides are equal. That implies we can say that AP is equal, you can say that PB is equal to CD. फिर आप लिखेंगे ऑल्सो PB पैरेलल CD, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया, मैम वीडियो साफ नहीं आ रही। वेट कर रही हूँ बेटा। हो गई कुछ? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. चलिए। Now what can we say that implies PBCD is a parallelogram? Please take the screenshot if you have to take. I am erasing now. Okay, so we are saying that implies PBCD is a parallelogram. अगर ये पैरेललोग्राम है, ये दो साइड्स इक्वल पैरेलल हैं, दैट मींस ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। सो वी कैन से दैट PD is equal to BC एंड मैम वॉइस ग्लिच हो रही है आपकी। अभी भी हो रही है? मैम नहीं हो रही। मैम वीडियो स्टॉप होगी। अब तो नहीं होगी बेटा, मैम हो रही है। मैम नहीं हो रही। मैम अब ठीक आई। ओके अब ठीक आ रही है। ओके, चलिए। हाँ ठीक है। Now we are saying this is a parallelogram. If this is a parallelogram, it's these two sides will also be equal and parallel. So we are saying PD is equal to BC and PD parallel BC. This is what we have written. PD is equal to BC and PD parallel BC. ठीक है। अब जब ये आपने लिख दिया, बट आपको क्या चाहिए, you want PQ parallel BC. तो अगर PD BC के पैरेलल है तो PQ भी तो BC के पैरेलल होगी, एक ही बात है, ठीक है। दैट इंप्लाइज, देखो हम लिख रहे हैं हाफ ऑफ PD, मैंने क्या किया, इस सबका ना हाफ कर दिया। अगर PD BC के इक्वल है, दैट मींस हाफ ऑफ PD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है। और यहां पर आप सिंपल लिख सकते हैं दैट PQ is parallel to BC, क्योंकि आप पूरी लाइन पैरेलल बोल रहे हैं, तो चाहे पूरी लाइन इसके पैरेलल बोलो या इसका पार्ट इसके पैरेलल बोलो, एक ही बात है। क्या कह रहे हो? मैम वॉइस ग्लिच हो रही है। मेरी तरफ से तो बिल्कुल ओके चल रहा है। एक बार और रिपीट। चलिए, ओके, ठीक है, ओके नाउ
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए लेट वी फिनिश इट. वी आर सेइंग अगर PD BC के इक्वल है, PD BC के पैरेलल है, मैंने ले लिए दोनों के हाफ. अगर दो चीजें आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे. ठीक है, आपके पास दो चपाती हैं बिल्कुल इक्वल है, आप दोनों के हाफ ऑफ कर दो, उनके हाफ ऑफ भी इक्वल आएंगे. राइट, तो यहाँ पर PD का हाफ BC के हाफ के इक्वल है. राइट नाउ इसको आप एक काम और करना पड़ेगा. जहां पर बेटा आपने CPCT लिखा था, जहां पर आपने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी ना, ठीक है, वहां पर आप एक चीज और लिख लो दैट PQ विल बी इक्वल टू QD, क्योंकि अब हमारा वो यूज होगा जहां पर आपने पहले CPCT से वो लिखा था ना कि AP इज इक्वल टू CD, वहीं पे हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू QD. राइट, और इसको भी आप फिर इस तरह से और को लिख देते हैं PQ प्लस QD इज इक्वल टू BC एंड PQ इज पैरेलल टू BC. ये वाला पार्ट तो हमारा हुआ है, हमें काम करना है इस पे. ठीक है, अब यहाँ पर मुझे चाहिए BC हाफ ऑफ BC, PQ चाहिए, QD नहीं चाहिए. सो एट द प्लेस ऑफ QD I am writing PQ. PQ plus PQ is equal to BC and PQ parallel BC. ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया डबल ऑफ PQ equal to BC and PQ parallel BC. इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर दो, you will get PQ is equal to half of BC and PQ पैरेलल BC. यही आपने प्रूव करना था. PQ is equal to 1/2 BC. Hence your theorem is proved. Hence proved. समझ आई? Understood? Or you want it to be explained again? Understood. एक बार दोबारा से करवाऊंगी. रोशनी बोलो. मैम हमने एक स्टेटमेंट अभी 2-3 स्टेप्स पहले लिखी थी दैट 1.5 ऑफ PB इज इक्वल टू 1.5 ऑफ BC. हाँ जी, मैम तो वो स्टेटमेंट अगर हम लिख देंगे तो उसके बाद ये सब कुछ प्रूफ करना पड़ेगा कि PQ प्लस QD इक्वल्स टू BC. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बट उसमें सिर्फ आपको ये शो करना पड़ेगा कि PD का हाफ क्या है आपका. PD का हाफ इज PQ, तो वो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा. जब आपने यहाँ पे CPCT से ये लिखोगे ना PQ इज इक्वल टू QD, बाय CPCT उसके साथ ही लिख देना, दैट इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू 1/2 PD. तो फिर आप सीधा यहाँ पे हाफ ऑफ PD हाफ ऑफ BC, तो यहाँ पे सीधा हाफ ऑफ PD की हमने प्रूव कर दिया दैट हाफ ऑफ PD इज PQ, तो वहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो. बिल्कुल कर रही हूँ लास्ट पार्ट भी रिपीट. देखो इसमें हमने दोबारा से ही कर रही हूँ मैं, एक बारी इरेज कर दो इसे. करें स्टार्ट एक बार से. इसको मैं इरेज कर रही हूँ. लास्ट पार्ट भी सारा अभी दोबारा से कर देते हैं बेटा. दोबारा से सुनना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नेम्ड थ्योरम है. बेस मेन तो नेम्ड थ्योरम मींस इट हैज इट्स नेम A B C and the name is midpoint theorem. We are saying if you are joining the midpoints of any two sides of a triangle, इसका midpoint आपने ये लिया, इसका midpoint आपने ये लिया, then we are saying ये जो line आएगी it will be parallel to the third side and it will be half of the third side. ठीक है, आपने प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है और इसकी हाफ है. राइट, वी हैव टू शो PQ पैरेलल BC एंड PQ इज इक्वल टू 1/2 BC. ठीक है, उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की है. कंस्ट्रक्शन की थी हमने, इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ करी एंड वी आर एक्सटेंडिंग दिस लाइन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज टेकन एज D. राइट, सबसे पहला स्टेप हमने प्रूव की है इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स.
Now because we have taken these two lines parallel, so ये आपके हो गए alternate interior angles. Angle 1 2 के equal और 3 4 के equal, and we are saying because this is midpoint, ये midpoint है आपका इस पूरी लाइन का, so AQ is equal to QC. तीन चीजें आपकी इक्वल आ गई, राइट? सो द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, राइट? एंगल, साइड, एंगल. सो यू विल गेट ट्रायंगल APQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ए आपका C कॉरेस्पॉन्डिंग है, P के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका D आ गया, CD एंगल, साइड, एंगल. नाउ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब इसमें हमने एक साइड ये इसके इक्वल यूज कर ली है, बाकी दो साइड्स हम CPCT से इक्वल लिखेंगे. सो वी आर राइटिंग PQ इज इक्वल टू QD, AP is equal to CD. These two are by CPCT. ठीक है, ये दोनों आपने लिखनी है. उसके बाद हम प्रूव कर रहे हैं इसको पैरेललोग्राम. To prove this to be a parallelogram, we are saying AP is equal to CD. ये क्या रखा है? But आपका AP किसके इक्वल है? PB के. But we have AP is equal to PB, so we can say that AP PB के इक्वल है, AP CD के इक्वल है. That means we can say that PB is equal to PB is equal to CD. ये इसके इक्वल हो गई, बट ये तो इसके पैरेलल थी, बट PB was parallel to CD. तो हमने कह दिया कि ये दोनों अगर इक्वल पैरेलल हैं, that means PBCD will be a parallelogram. Now if this is a parallelogram, these two sides will also be equal and parallel. So PD is equal to BC and PD is parallel to BC. ठीक है, अब मुझे PD नहीं चाहिए, I want PQ. दोनों में मुझे PQ चाहिए, यहाँ PD आ रहा है, तो इसको यहाँ से हटाना है. BC अगर PD के पैरेलल है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी पैरेलल है. अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट ले लेती हूँ तो भी पैरेलल है, राइट? सो वी आर सेइंग BC is parallel to PQ. PD की जगह यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली बड़े आराम से PQ मैंने इंसर्ट कर दिया, राइट? अब बात आती है यहाँ पर PQ लेकर आने की, बट मेरे पास है PD, राइट? तो एट द प्लेस ऑफ PD आई एम राइटिंग PQ प्लस QD, राइट? तो ये लिखा मैंने PQ प्लस QD इज इक्वल टू BC. ये बाकी वाला पार्ट एज इट इज. अब PQ और QD तो आपने सेम किए थे बाय CPCT. मुझे सिर्फ PQ चाहिए, आई डोंट वांट QD है, तो मैं QD की जगह पे भी PQ लिख रही हूँ. PQ प्लस PQ इज इक्वल टू BC. रिमेनिंग पार्ट एज इट इज. PQ प्लस PQ कितने हो गए? डबल ऑफ PQ इज इक्वल टू BC. बट मुझे तो चाहिए PQ, तो ये 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा. सो आई कैन से दैट PQ इज इक्वल टू 2 जब उधर जाएगा तो आपका नीचे 1/2 BC, और इसके साथ आपके पास है ही सही दैट PQ इज पैरेलल टू BC. ये दो चीजें आपने प्रूव करनी थी और ये प्रूव हो गई. ठीक है, दिस इज योर मिड पॉइंट थ्योरम. और एक आता है इसी का कन्वर्स. कन्वर्स क्या हो जाएगा कि अगर आपकी ये लाइन इसके पैरेलल है और इनमें से ये मिड पॉइंट है, तो ये सामने वाला भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. ये इसकी कन्वर्स होती है, राइट? जरा अब इस पे ये हो गया क्लियर? इरेज कर दो इसे. नॉट ऑडिबल, इसको नहीं है. You will have to watch the video later if there is any problem. चले. हमें एक बार 8.1 के एग्जांपल्स करा दो दोबारा. 8.1 के एग्जांपल्स करवा दो. At present I don't have the examples.
तो कल वाली मैं करवा दूंगी, ठीक है। अभी वो बुक नहीं है मेरे पास जिसमें एग्जांपल्स हो। चलिए अब इसका कन्वर्स में आ रही हूँ मैं, दैट इफ यू हैव अ ट्रायंगल A B C, this only one is midpoint given P, and we are saying अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सामने वाला भी मिड पॉइंट होगा। वी हैव टू शो दैट P AQ is equal to QC। तो इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है AP is equal to PB and PQ पैरेलल टू BC, ठीक है। आपने जो प्रूव करना है दैट इज AQ इज इक्वल टू QC। कैसे करोगे? कैसे करें? मैम अंदर पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अंदर कहाँ पैरेलल? क्या उसे BC के अंदर AB पैरेलल ऐसे होगा? नहीं, इसमें भी कंस्ट्रक्शन आपके फिर से जैसे उसमें थी ना उसी तरह से इसमें भी उधर की तरफ जाएगी और फिर से हमें ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी। बट उसमें हमने पैरेलल, इसके पैरेलल हमने ये लाइन ले ली थी, अब यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और इसको एक्सटेंड ड्रॉ पैरेलल ड्रॉ करेंगे। आपने प्रूव करना है AQ QC के इक्वल है। मैम फिर हम इस जो हम P को एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट D मान लो, फिर CD पैरेलल है D। ऐसे कैसे सारा कुछ अपनी तरफ से थोड़ा हो जाएगा। अच्छा, आपने ये पैरेलल ड्रॉ कर दी, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये Yes, पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम है तो ये इसके इक्वल, मैम फिर ये दोनों हम AP के और CD के और ये भी कॉन्ग्रुएंट equal हो गया। कॉन्ग्रुएंसी करनी है इसमें आपने इसकी और इसकी कॉन्ग्रुएंसी लानी। रोशनी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हम एक प्रॉब्लम करेंगे से नहीं आ रही हो जाए। आपकी वॉइस नहीं ऑडिबल है, जल्दी से लगाओ अपना दिमाग, हरी आप सारे। हाँ जी, P के पैरेलल BC में PD पैरेलल BC हो जाएगा। हाँ जी, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, ठीक है। बट ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, ये साइड इसके भी इक्वल आ गई, ठीक है। फिर आप प्रूव करना है आपने इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी। AS से हो जाएगा। हाँ, AS से कर लो या AS से कर लो, किसी से भी अब आपकी हो जाएगी। आप ये वाला एंगल इसके इक्वल भी ले सकते हो, ये एंगल इसके इक्वल, तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, राइट। देखो इसमें आपने क्या करना है, इसको अलग एक्सटेंड किया और ये हमने पैरेलल ड्रॉ किया, फिर से वही कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड किया और इसको हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया। वीडियो नहीं आ रही। नहीं, पैरेललोग्राम कहाँ से होगा? बेटा आपने पैरेललोग्राम कैसे हुआ, ये हम कह रहे हैं कि हमने इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की है और इसको आगे एक्सटेंड किया है, ठीक है। ये लाइन तो ऑलरेडी स्टार्ट थी, ये लाइन इसके पैरेलल थी, दैट मींस अगर आप एक्सटेंड करोगे तो भी ये इसके पैरेलल, ये आपने पैरेलल ड्रॉ कर ली है, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ये दोनों भी पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, तो ये बना आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम बना है तो ये साइड्स आपकी पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी हो गई, ठीक है। PB इज इक्वल टू CD, राइट। बट PB तो आपकी किसके इक्वल थी? इट वाज इक्वल टू AP, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, राइट।
So we can say that AP is equal to CD. ये दोनों आपस में हो गए इक्वल. AP is equal to CD. ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और जैसे आपने पहले किया था 3 and 4 they are also equal because ये दोनों लाइंस पैरेलल